فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ دیکھیں، آج میں آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی انشاءاللہ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت خاص نبی تھے جن پر بہت ساری آزمائش آئی۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے مشہور شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ابا حضور بتوں کو تراشتے تھے اور خود بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنے قوم کے لوگوں سے فرمایا، تم یہ کس کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم جب ان بتوں کو پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں؟ کیا وہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اس پر لوگوں نے جواب دیا، یہ سب ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی طرح بتوں کی پوجا کرتے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کم عمر میں ہی ہدایت دے دی تھی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھانے کی بھی بہت کوشش کی تھی اور فرمایا، ابا مجھے ایک ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، اس لیے میرے ساتھ ہو جائے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ ابا بتوں کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے، مجھے ڈر ہے کہیں اللہ کا عذاب آپ کو نہ پکڑ لے یا آپ شیطان کے ساتھ نہ ہو جائے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے جواب دیا، اے ابراہیم، کیا تو میرے بتوں کو نہیں مانتا؟ دیکھ لے، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، تو مجھ سے دور ہو جا اور کبھی مجھے نظر نہ آنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے فرمایا، ابا جی آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا۔ والد کے سخت جواب کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام بت پرستی سے سخت چڑھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ عید کے دن کھانا پکاتے بتوں کے سامنے رکھتے تھے، پھر شہر کے باہر ایک میدان میں جمع ہوتے اور سب مل کر خوشیاں مناتے، اور پھر شام کو گھروں کی طرف آتے اور صبح جو بتوں کے سامنے جو کھانا رکھ گئے تھے اس کو تبرک سمجھ کر کھا لیتے۔ ایک دفعہ جب عید کا دن آیا تو سب تیار ہو گئے مگر ابراہیم علیہ السلام تیار نہیں ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے لوگ آئے اور پوچھا، کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں، میں بیمار ہوں۔ وہ سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے اور دیکھا کہ ان کے سامنے کھانا پڑا ہے اور ان بتوں نے اس کھانے کو چھوا تک نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، یہ اتنا سارا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے، تم اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بات تک نہیں کرتے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوری طاقت سے کلہاڑی مار کر ان بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے مگر ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ سارے چھوٹے بتوں کو توڑ کر کلہاڑی اس بڑے بت پر رکھ دی۔ لوگ جب واپس لوٹے تو حیران رہ گئے، یہ کیسے ہو گیا؟ قوم کے لوگوں نے مشورہ کیا، سب کو جمع کرو اور ابراہیم کو بلاؤ اور اسے سزا دو۔ سب لوگ جمع ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے ابراہیم، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم اپنے بتوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کس نے کیے؟ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر سب سوچ میں پڑ گئے اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ بول نہیں سکتے؟ پھر اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ اللہ کے سوا ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تعجب ہے تم لوگوں پر جس کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، تم لوگ اسی کی عبادت کرتے ہو جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو۔ کیا تم لوگوں میں بالکل عقل نہیں؟ مگر سب کچھ سننے اور سمجھنے کے باوجود بھی وہ لوگ کفر پر ڈٹے رہے اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر ان لوگوں نے ایک میدان میں کئی دن تک خوب ساری لکڑیاں جمع کی اور اس میں آگ لگا دی، اور جب آگ خوب بھڑک اٹھی تو لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں رسیوں سے باندھ کر ڈال دیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔
अल्लाह सुब्हान तआला ने आग से फरमाया, ऐ आग इब्राहिम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो आग ठंडी हो गई, क्योंकि आग भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं जला सकती। वो इसलिए क्योंकि आग भी अल्लाह ही की मखलूक है, इसलिए जब आग को अल्लाह की तरफ से ठंडा होने का हुक्म हुआ तो वो ठंडी हो गई। आग ने ना ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कपड़े जलाए और ना ही जिस्म का कोई हिस्से को नुकसान पहुंचाया, सिर्फ वो रस्सियां जली जिससे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बांधा गया था। सब लोग आग के पास इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलता हुआ देखने के लिए खड़े थे, मगर सब लोग ये देखकर हैरान रह गए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े ही सुकून से आग के बीचों बीच बैठे हुए हैं। लोगों ने इस मौजे को देखा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में से निकले और इतना बड़ा मोजज़ा देखने के बाद भी कोई ईमान नहीं लाया। पूरे बाबिल शहर के लोग कुफ्र ही पर डटे रहे और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके ये रवैया देखकर ना उम्मीद हो गए कि इससे बढ़कर ये लोग और कौन सा मोजज़ा देखना चाहते हैं। उस वक्त बाबिल शहर पर नमरूद नामी बादशाह की हुकूमत थी। जब उस तक ये मोजज़ा की खबर पहुंची तो उसने अपने दरबार में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पेश करने का हुक्म दिया। उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनके रब के बारे में पूछा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। जवाब में बादशाह ने कहा, मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। उस बादशाह ने हुक्म दिया कि जेल से 2 आदमियों को लेकर आओ। फिर उस बादशाह ने एक को कत्ल करने का हुक्म दिया और दूसरे को माफ कर दिया और कहने लगा कि देख लो, मेरे हुक्म से लोग मरते हैं और जिंदा रहते हैं। इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, बेशक अल्लाह सुब्हान तआला सूरज को मशरिक से निकालता है, तू उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। इस पर नमरूद के पास कोई जवाब न था। फिर उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शहर से निकल जाने का हुक्म दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक को छोड़कर शाम शहर की तरफ चल दिए। यहाँ पर उन्होंने अपने चाचा की बेटी सारा अलैहिस्सलाम से शादी कर ली और यहीं रहने लगे। इस शहर के लोग बुतों की पूजा तो नहीं करते थे, बल्कि सितारों को पूजते थे। ये लोग रात को इबादत करते थे, क्योंकि तारे तो रात को ही निकलते हैं। एक रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन लोगों के साथ निकले और एक चमकते हुए तारे को देखकर मजाक में बोले कि ये मेरा रब है। फिर जब वो तारा छुप गया, बोले कि ये मेरा रब कैसे हो सकता है जो छुप जाए। अगली रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चांद को देखकर बोला कि ये मेरा रब है। फिर जब दिन हुआ और चांद छुप गया तो बोले, ये रब कैसे हो सकता है। अगर दिन के वक्त किसी को अपने रब की हाजत होगी तो वो क्या करेगा। इन बातों से इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन लोगों को गौर फिक्र की दावत दे रहे थे ताकि वो लोग गौर फिक्र करें। फिर जब दिन हुआ और सूरज निकला तो कहने लगे, ये मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। लेकिन जब वो भी शाम को गुरूब हो गया तो कहने लगे, ये भी रब कहलाने के लायक नहीं, ये सब तो मखलूक है और इन सब का खालिक तो कोई और है। मैं तो उसकी इबादत करता हूँ जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। मगर उन लोगों ने फिर भी कुफ्र ही किया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात ना मानी। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहां से हिजरत करने का फैसला किया। मिस्र मुल्क जा पहुंचे। मिस्र के बादशाह को जब खबर मिली कि एक शख्स हिजरत करके आया है और उसके साथ एक औरत है जो कि बहुत हसीन और जमील है, उस बादशाह ने लोगों को भेजा और कहा, उस औरत को मेरे पास ले आओ और मालूम करो कि उसके साथ जो आदमी है वो कौन है। अगर वो उसका शौहर हो तो उसे वहीं कत्ल कर देना। उधर बादशाह ने अपने लोगों को भेजा और इधर अल्लाह सुब्हान तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वही भेजी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारा अलैहिस्सलाम से कहा, अगर वो तुमसे मेरे बारे में पूछे तो उनसे कहना कि तुम मेरी बहन हो। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारा अलैहिस्सलाम को बताया, इस रूहानी जमीन पर मेरे और तुम्हारे सिवा कोई ईमान वाला नहीं, इस लिहाज से तुम मेरी दीनी बहन हो। और उस जालिम बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को अपने महल में बुला लिया। जब उसने सारा अलैहिस्सलाम के साथ बदकारी करना चाहा तो सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और दुआ की बरकत से वो बादशाह का हाथ जम गया। वो बुरी तरह से चीखने लगा और उसके सारे मुलाजिम आ गए। ये देखकर सारा अलैहिस्सलाम डर गई और सोच में पड़ गई, अगर ये बादशाह मर गया तो लोग सोचेंगे कि मैंने इसे कत्ल किया है। अलैहिस्सलाम ने उससे निजात देने के लिए अल्लाह से दुआ की और उस बादशाह का हाथ ठीक हो गया, पर उसने फिर से वही हरकत की, उसके हाथ फिर जम गए। ऐसा ही हाल 3 मरतबा हुआ और आखिरी बार उसने सारा अलैहिस्सलाम से वादा किया कि अब की बार तू मुझे इस
मुसीबत से निजात दिलाएगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। फिर सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और वो बादशाह ठीक हो गया। फिर उसने सारा अलैहिस्सलाम को इज्जत से रिहा कर दिया और उनकी खिदमत के लिए हाजरा को उनके साथ कर दिया। सारा अलैहिस्सलाम जब वापस आई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे बल्कि वापस जाएंगे। फिर वो लोग वापस फलस्तीन चले गए। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल की हो गई पर उनकी कोई औलाद न थी। तो सारा अलैहिस्सलाम ने सोचा मैं बांझ हूँ और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद की ख्वाहिश है, क्यों ना मैं हाजरा अलैहिस्सलाम का निकाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कर दूं। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम का निकाह हो गया। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद मांगने की दुआ कबूल की और बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से नवाजा। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि अपने बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम और बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर मक्का रवाना हो। उस वक्त मक्का शहर एक बिल्कुल बंजर जगह थी। यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को छोड़कर जाने लगे तो हाजरा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुई और वो अपने शौहर से पूछने लगी, ऐ इब्राहिम, हमें कहाँ छोड़े जा रहे हो? यहाँ ना पानी है, ना खाना है, ना कोई इंसान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया और चलते रहे। हाजरा अलैहिस्सलाम उनके पीछे पीछे चलती रही और सवाल करती रही कि हमें किसके सहारे छोड़े जा रहे हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। आखिर हाजरा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, क्या अल्लाह ने इस काम का हुक्म दिया है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। जब सैयदा हाजरा खामोश हो गई और बोली, अगर ये बात है तो अल्लाह हमें बिल्कुल जाया ना होने देगा। खुराक और पानी चंद दिन में खत्म हो गया। पानी का एक भी खतरा ना बचा। खुराक ना मिलने की वजह से माँ का दूध भी सूख गया। अब बच्चा इस्माइल अलैहिस्सलाम भूख से रोने लगा। हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को भूख से रोता देख उन्होंने बच्चे को वहीं छोड़ा और पास के पहाड़ी सफा की तरफ दौड़ी कि शायद किसी तरफ पानी या खुराक नजर आ जाए या किसी इंसान की झलक नजर आ जाए। जब कुछ नजर ना आया तो नशीब की तरफ पहुंची, पर जब उन्हें बच्चा नजर ना आया तो तेजी से मरवा पहाड़ी की तरफ दौड़ी। वहां भी कुछ नजर ना आया। फिर ख्याल आया कि फिर से कोशिश करनी चाहिए। इस तरह उन्होंने सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए। अल्लाह सुब्हान व तआला को हाजरा अलैहिस्सलाम की ये अदा बहुत पसंद आई और अल्लाह ने हाजरा अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को बरकरार रखने के लिए इसे हज का हिस्सा बना दिया। यही वजह है कि मुसलमान हज और उम्रा के वक्त सफा और मरवा के दरमियान सही करते हैं। जब वो आखिरी मर्तबा मरवा पहाड़ पर पहुंची तो उनको एक आवाज सुनाई दी जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब से आ रही थी। वो जल्दी से अपने बच्चे के पास पहुंची तो देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे से पानी फूट रहा है। अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हाजरा अलैहिस्सलाम की मदद के लिए भेजा था। उन्होंने जमजम वाली जगह पर अपना पैर मारा तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के पास से जमजम का चश्मा जारी हो गया। अल्लाह सुब्हान तआला ने अपने इन बंदों के लिए जमीन फाड़ कर एक चश्मा निकाल दिया। यही आब जमजम का आगाज था। हाजरा अलैहिस्सलाम पानी को हैरान होकर और खुशी से देख रही थी। जब उन्होंने देखा पानी इधर उधर बह रहा है तो उन्होंने जमीन को खोदना शुरू कर दिया ताकि पानी इधर उधर ना जाने पाए। फिर उन्होंने उस गड्ढे के चारों तरफ पत्थर रख दिए और बोली, जमजम ही रुक जा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा पर रहम फरमाए। अगर वो जल्दबाजी से काम ना लेती तो जमजम एक बहने वाला चश्मा होता। हाजरा अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी पिलाया और खुद भी पिया। बस यही आब जमजम उनके खाने और पीने का काम देता रहा। कुछ ही दिनों में हिजरत करने वालों का एक कबीला पानी की तलाश में वहां जा पहुंचा। उन्होंने हाजरा अलैहिस्सलाम से वहां रहने की इजाजत मांगी तो हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ ठीक है, लेकिन आपको उजरत अदा करनी होगी। कबीले वालों के लिए ये सस्ता सौदा था। उन्होंने फौरन हाँ कर दी। इस तरह वहां रिहाइश शुरू हो गई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां परवरिश पाते रहे। इस कबीले की मक्का में रिहाइश इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा थी। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बीवी बच्चे को बंजर जगह पर छोड़ा था तो ये दुआ मांगी थी, ऐ हमारे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद इस बेआबाद जंगल में तेरे घर के पास बसाई है। ये इसलिए कि वो नमाज कायम करे
लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें फलों की रोजियां अता फरमाता कि ये शुक्रगुजारी करें। दिन गुजरते गए और इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का में बड़े होते रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर साल 1-2 बार अपने घराने का चक्कर लगाते थे। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने होश संभाला तो एक बार फिर आजमाइश का वक्त आया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़ुबह कर रहे हैं। उनकी नींद खुल गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते थे कि अंबिया के ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं, लिहाजा उन्होंने इस ख्वाब के मुताबिक अमल करने का इरादा कर लिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़ुबह कर रहा हूँ, तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है उसे पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। बाप बेटे दोनों अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए निकले। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से फरमाया, जब आप मुझे ज़ुबह करने लगे तो मेरी पेशानी जमीन पर रख दीजिए ताकि आपको मेरा चेहरा नजर न आने पाए और कहीं आपके हाथ रुक न जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और आंखों पर पट्टी बांध ली। अब उन्होंने छुरी पकड़कर गर्दन पर चला दी, लेकिन छुरी ने गर्दन ना काटी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जोर लगाया तो उन्हें एक दुम्बे की आवाज आई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर पट्टी खोली तो देखा कि एक दुम्बा कटा हुआ है और इस्माइल अलैहिस्सलाम दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक हुक्म पर अपने एक लौते बेटे को कुर्बान करने के लिए राजी हो गए। वो बेटा जो उन्हें 86 साल की उम्र में पूरी जिंदगी बे औलाद रहने के बाद मिला था। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनके बेटे को नहीं छीना, बल्कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज के इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत का एक खूबसूरत दुम्बा कुर्बान कर दिया। इसके बाद से अल्लाह ने दुनिया भर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को जिंदा रखा और आज भी दुनिया भर में मुसलमान हज के मौके पर कुर्बानी करते हैं ताकि अल्लाह की राह में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह कुर्बानी करने का जज्बा पैदा हो। एक लौटे बेटे की कुर्बानी करने के लिए तैयार हो जाने के सिले में और सारा अलैहिस्सलाम की आजमाइश और नेकी के बदले अल्लाह ने उन्हें एक और बेटा इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब 120 साल के थे और सारा अलैहिस्सलाम 90 साल की थी, अल्लाह ने ये खबर सुनाने के लिए फरिश्ते भेजे। फरिश्तों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सलाम किया और बेटा इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। ये सुनकर सारा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुई, कहने लगी, क्या मुझे औलाद होगी? हालांकि मैं बांझ हूँ और मेरे खाविंद बूढ़े हो गए हैं, ये तो हैरत की बात है। इस पर फरिश्तों ने कहा, अल्लाह के फैसले पर ताज्जुब ना कीजिए, ये तो अल्लाह की आप पर रहमत है, बेशक वो काबिल तारीफ है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने मक्का आते रहते थे। एक मर्तबा उन्होंने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह सुब्हान तआला ने मुझे हुक्म दिया है कि इस मुकाम पर अल्लाह का घर तामीर करना होगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं हाजिर हूँ। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर काबा की तामीर की। जब वो बैतुल्लाह की बुलंदियों को बुलंद कर रहे थे तो दुआ मांग रहे थे कि ऐ हमारे रब, हमारी मेहनतों को कबूल फरमा, बेशक तो दुआ का सुनने वाला जानने वाला है, और हमें अपना फरमा बरदार बना, हमारी औलाद में से भी एक फरमा बरदार गिरोह बना और हमें इबादत का तरीका सिखा और हम पर रुजू फरमा, क्योंकि तू ही तौबा कबूल करने वाला है और रहम फरमाने वाला है। ऐ हमारे रब, इन पर इन्हीं लोगों में से एक रसूल भेज जो उन पर तेरी आयत की तिलावत करे और तेरी किताब और हिकमत सिखाए और उन्हें पा करे, यकीनन तू गालिब हिकमत वाला है। तामीर के वक्त अल्लाह ने एक पत्थर भेजा था जिसका नाम हजर अस्वद था। ये पत्थर निहायत सफेद था। अब ये पत्थर लोगों की गुनाहों की वजह से काला हो गया। तामीर के वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर खड़े हुए, वो नंगे पैर थे। उसी वक्त पत्थर पिघल गया और पत्थर पर उनके पाँव के निशानात आ गए। इसी पत्थर को आज मुकाम इब्राहिम कहा जाता है और आज भी लोग उसे देख सकते हैं। इस तरह काबा तामीर हुआ। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों में हज का ऐलान कर दो। इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मेरी आवाज़ भला किस किस तक पहुँचेगी? अल्लाह ने जवाब दिया, आपके जिम्मे सिर्फ आवाज़ लगाना है, पहुँचाना हमारा काम है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अरफात के पहाड़ पर चढ़े और आवाज़ लगाई, लोगों, बैतुल्लाह हरम का हज करो। इसकी बरकतों से बैतुल्लाह हरम की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी, जिसकी वजह से आज तक
ہر کوئی حج و عمرہ کی خواہش رکھتا ہے اور ہزاروں لوگ ہر سال بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ابراہیم علیہ السلام پر بہت آزمائشیں آئی، پر ہر حال میں، ہر معاملے میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وفادار رہے۔ اس لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل الرحمن کے لقب سے نوازا، یعنی اللہ کا دوست۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔